وہ شہر کی سیر میں شاید زیادہ تک گئی تھی، اس لیے تھوڑی دیر بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن میں مصرفانہ انداز میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ میرے لیے یہ احساس بہت تکلیف دہ تھا کہ پوشیدہ کیمروں کے ذریعے ڈرا کے ایجنٹ ہماری خلوت میں دخل انداز ہو چکے تھے۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ شاید یہ محاورہ درست نہ ہو، لیکن شاید اضطراری کیفیت کے باوجود رات کے آخری لمحات میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو غزالہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ مجھ سے پہلے بیدار ہو سکتی تھی، مگر اس وقت میری ذہنی کیفیت نہ جانے کیا تھی کہ میں نے ہڑبڑا کر بستر چھوڑ دیا۔ غزالہ تیار ہو کر سکون سے ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ اسے خبر تک نہیں ہوئی کہ میں جاگ چکا تھا۔ اسے اطمینان سے بیٹھا ہوا دیکھ کر میری جان میں جان آئی اور میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں میز کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اول خان کے ذریعے میں پچھلی شام ہی کو پاکستان والوں کو پیغام دے چکا تھا کہ وہ مجھ سے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں۔ آئی بی والے پل پل کی صورتحال سے باخبر تھے اور مجھے فون کرنے کی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ میری دانست میں وہ کال نریش یا رینا کی ہو سکتی تھی۔ اپنے اس مفروضے کے ساتھ میں نے ریسیور اٹھایا تو آپریٹر نے لائن پر نریش کی موجودگی کی خبر سنائی اور میرے ذاپ آتے ہی لائن ملا تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم سو رہے ہوگے، مگر تمہاری آواز بہت تر و تازہ ہے۔ میری آواز سنتے ہی نریش فون پر چہکا۔ میرے لیے اس کی خوش دلی حیران کن تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اپنے کیمروں کے بندوبست کی ناکامی پر چلایا ہوا ہوگا۔ میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا، 11 بجنے والے ہیں، میں کافی دیر پہلے اٹھ گیا تھا، اس وقت ناشتہ کر رہا تھا۔ ویری گڈ، یہ بتاؤ کہ اب تمہاری ڈپریشن کا کیا حال ہے؟ اس نے براہ راست سوال کیا۔ کل میں نے خاصا وقت شہر میں گزارا، اس سے موڈ تبدیل ہوا ہے، مگر ایک تشویش اپنی جگہ برقرار ہے۔ شاید ایک آدھ دن میں وہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے غزالہ کو آنکھ مار کر فل بدی ایک شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ مجھ سے براہ راست یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ میں پچھلی رات غزالہ سے دور کیوں رہا تھا، مگر اس نے میری توقع کے مطابق میری بات پکڑ لی اور رازدارانہ آواز میں پوچھا، خیریت تو ہے؟ تشویش کس بارے میں ہے تم کو؟ کوئی نفسیاتی گرہ معلوم ہوتی ہے۔ میں نے بھی اپنی آواز دھیمی کر لی، جیسے نریش مجھے غزالہ سے زیادہ عزیز اور قابل اعتماد محسوس ہوتا ہو۔ میری گرل فرینڈ مجھ سے چاکی ہو گئی ہے۔ ہم یہاں ہنسنے کھیلنے کے لیے آئے تھے، مگر اب طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہو رہی۔ میں نے اسے وہی بتایا تھا جو وہ میری اور غزالہ کی ریکارڈ کی ہوئی گفتگو کی صورت میں شاید پہلے ہی سن چکا تھا۔ ریسیور پر ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز ابھری، تم بہت ڈرپوک آدمی ہو، یہ کمزوری قابل رحم ہے، تم چاہو تو میں تمہیں ایک سنیاسی سے ملوا سکتا ہوں، اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس کے نادر نسخوں سے شفایاب ہو جاتے ہیں۔ انڈین سیکرٹ سروس کا وہ ذمہ دار افسر اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے آمادہ تھا۔ میں نے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے کہا، آج یہاں ہماری آخری رات ہے، میں جلد از جلد پاکستان جا کر ہی پاکستان جانے کی تمہیں کیا جلدی ہے؟ میری بات مکمل ہونے سے پہلے نریش کی اضطراری آواز سنائی تھی، 2-4 دن میں تم بھلے چنگے ہو جاؤ گے یار، تم سے پیشگی تنخواہ لے لینے کے بعد میرے سر پر تمہارے کام کا بوجھ سوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر اور ماحول میں لوٹ کر مجھے کسی علاج معالجے کی ضرورت نہ رہے، میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا۔ سچ پوچھو تو اب یہاں سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے۔ میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں۔ نریش کا لہجہ خشک اور مایوسانہ ہو گیا۔ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم دہلی کے بارے میں خراب تاثرات لے کر نہ جاؤ۔ یہ مہمان نوازوں کا شہر ہے، میرا کام 2-4 دن بعد بھی شروع ہو سکتا ہے۔ نہیں نریش، میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، یہ کوئی مرض نہیں، نفسیاتی گرہ ہے جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ میں جب بھی تمہارا سامنا کرتا ہوں میرے دماغ میں چیونٹیاں سی رینگنے لگتی ہیں، تو ان پر عجیب اور بے نام خوف سوار ہو جاتا ہے۔ اس ماحول سے نکلتے ہی میں سدھر جاؤں گا، میرے یہاں سے لوٹ جانا ہی میرے اور تمہارے مفاد میں ہے۔ میرے جواب میں خاصی تلخی موجود تھی جو نریش کی بڑائی کے اظہار میں شاید معدوم ہو گئی تھی۔ اس کی آواز یکایک پرغرور ہو گئی، مظہر تم بلا وجہ مجھے بدنام کر رہے ہو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا۔ دلی کے 3 درجے کے چور اور اچکے بھی اسے زیادہ ذہنی اور جسمانی تشدد ہنستے کھیلتے سہ لیتے ہیں، تم سے ذرا سی پوچھ گچھ ہی میں پہندے کے بل بیٹھ کے۔ تمہاری بات 100% درست ہے، میں نرم آواز میں اعتراف کیا۔ چور اور اچکے ہر بات اور مار سہ سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تم بھول رہے ہو کہ میں ایک عزت دار کاروباری آدمی ہوں۔ وہ میری زندگی کا پہلا تلخ تجربہ تھا جو میرے دماغ کی نسوں میں بیٹھ چکا ہے۔ شاید میری کہی ہوئی بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ چند ثانیوں کے لیے لائن پر سکوت چھا گیا، پھر اس کی بوجھل آواز آئی، یہ سچ تمہیں انکل انل کے سامنے اگلنا چاہیے تھا، وہاں تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ میری بات کو الزام بنا کر جھٹلا دیا۔ اب مان لو کہ تم نے بیلا سنگھ کو میرے دوست کی بیٹی سمجھ کر معاف نہیں کیا تھا، بلکہ تم اس کا کچھ بگاڑنے کے قابل ہی نہیں تھے۔ اس وقت مجھے خود اپنی حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ اپنی ساتھی کے شکوے کے بعد میں صحیح نتیجے پر پہنچا ہوں۔ تم چاہو تو میں یہ بات تمہارے انکل کے سامنے بھی دہرا سکتا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے دوست کی بیٹی والے قصے سے اس کا بھی کوئی تعلق ہے۔ انکل کا اس معاملے سے کیا واسطہ؟
उसकी झलाई हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं तुम्हें यह जता रहा था कि वहां तुमने झट अपनी और रीना की फिल्म का ताना दिया था, अब कुछ और सुना रहे हो। उसे सुलगाना या मुश्तिल करना मेरे मफाद में नहीं था। मैंने झट हथियार डाल दिए। उस वक्त मैं गलती पर था, अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। तुम जिस तरह चाहो, मैं अपनी तजाद बयानी का अजाला करने के लिए तैयार हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। ये याद रखना कि तुम्हारी वीडियो आज भी हमारे कब्जे में है। यह बात मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। मैंने जल्दी से कहा, पता नहीं तुम बार बार उसका हवाला क्यों देते हो। एक इज्जतदार कारोबारी आदमी को इसके कमजोर लम्हों का अहवाल बार बार याद दिलाने से उसका हाफजा मजबूत रहता है। तुमने हमसे किए हुए मुआहदे से जरा भी मुंह फेरा तो कराची की हर वीडियो शॉप से 10-10 रुपए किराए पर तुम्हारी ये फिल्म दस्तयाब होगी। यह बात भी तुम मुझे पहले बता चुके हो और मैं इसे ज़हन नशीन कर चुका हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर तुमसे समझौता किया है। मेरे दिल में कोई खोट होता तो हमारे मामलात इस हद तक न पहुंचे होते जहां आज नजर आ रहे हैं। मैंने शिकायती लहजा में कहा, बाज़ बातों का बार बार धुराना अच्छा होता है। उसका लहजा तंज में लथड़ा हुआ था। वो बहुत खबीस और बदफितरत आदमी था। अपना हदफ हासिल करने के लिए ब्लैक मेलिंग पर तुला हुआ था और फिर ब्लैक मेल करने के लिए बार बार एक ऐसी फिल्म का हवाला दे रहा था जो नागर की हड्डियों के साथ नरेश ही के दफ्तर में जलकर खाक हो चुकी थी। मुश्किल ये थी कि मैं उसे फिल्म के अंजाम के बारे में अपनी मालूमात का कोई हवाला नहीं दे सकता था। वो मुझसे हकीकत छुपाकर मुसलसल झूठ बोले जा रहा था। मुझे यकायक एहसास हुआ कि मुझसे ताज़ा तरीन गुफ्तगू के बाद वो झूठ उसकी मजबूरी बन चुका था। जब तक उसे ये उम्मीद थी कि वो जली हुई फिल्म का कोई मुतबादिल हासिल कर लेगा, वो पुर उम्मीद था। मेरे ऊपर बेला सिंह का वार नाकाम होने के बाद वो चिल्ला कर फट पड़ा था, मगर फिर उसके शैतानी दिमाग ने मेरे कमरे में खुफिया कैमरे नस्ब करने की राह निकाल ली और मेरे साथ उसका रवैया खुशगवार हो गया। इसके लगवाए हुए कैमरों के साए में हमने आफियत की एक रात गुजार ली थी। काम का कोई मवाद न मिलने पर शायद उसने मुतजस्सिस होकर मुझे फोन किया और इस बार मैंने उसके घनौने खेल की तवालत खत्म करने के लिए उसे एक बिल्कुल नई कहानी सुना डाली, जिसकी रोशनी में उसकी कामयाबी का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा था। उसके लिए वो कहानी मायूस कुन साबित हुई थी। ऐसी सूरत में वो झूठ बोलने पर मजबूर था। रीना अजीत राय के रूप में उसने मेरी तरफ पहला तीर चलाया था, ठीक निशाने पर लगा था, मगर उसके दफ्तर में लगने वाली आग ने उसकी कामयाबी को नाकामी में बदल दिया था। मेरे खिलाफ उसके पास कोई ऐसा मवाद नहीं रहा था जिसके सहारे मुझे ब्लैकमेल किया जा सके। अपनी तीसरी कोशिश की तरफ से नाउमीद होने के बाद उसके सामने वही एक राह बाकी रह गई थी कि वो झूठ पर जम जाए और मुझे पहली फिल्म की धौंस देता रहे। तुम इन बातों को दोहरा कर अपना दिल खुश कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे अपनी कमजोर पोजीशन का अंदाजा है। आज दिल्ली में तुम अपनी आखिरी रात गुजारने के पाबंद हो। कल सुबह तुम्हें आज़ादी होगी कि जब चाहो वापस लौट जाओ। मेरे आजाना जवाब से तस्कीन पाते ही उसने वो बात कह डाली जिसका मैं देर से मुंतजिर था। अनिल बिस्वास ने पिछले दिन रात के सदर दफ्तर में गजाला से वही बात कही थी, मगर मुझे भरोसा नहीं था कि वो लोग आखिर तक अपने इस फैसले पर कायम रहेंगे। नरेश ने मेरी तरफ से नाउमीद होने के बाद वो बात दोहराई थी तो इसमें कुछ न कुछ वजन जरूर था। इस फैसले के लिए मैं तुम्हारा और तुम्हारे अंकल का शुक्रगुजार हूँ। शायद हम कल का दिन शॉपिंग में गुजारेंगे। परसों मैं तुम्हारे मिशन की तकमील के लिए दिल्ली से रवाना हो जाऊंगा। टैनी मेरा सबसे पहला हदफ होगा। आखिरी फिक्र का इजाफा मैंने जानबूझ कर किया था। काश तुम उस इफरीत को अपने किसी जाल में फांस सको। दुखती रग पर हाथ पड़ते ही वो हसरत भर लहजे में बोल उठा, तुम सोच नहीं सकते कि ये काम करके तुम अपने लिए क्या मकाम पैदा करोगे। आज़ादी का मुस्ता सुनाकर पहले उसने मुझे खुश किया था। डैनी को गिराने का अहद धुराकर मैंने उसे खुश कर दिया। यूं तलखियों से गुजरने वाली हमारी वो गुफ्तगू एक बेहतर अंजाम के साथ खत्म होगी। इस काल पर गजाला की खामोशी खतरनाक साबित होती क्योंकि हमारे कमरे में उभरने वाली हर आवाज़ कहीं सुनी और रिकॉर्ड की जा रही थी। गजाला को इस नाजुक सूरत हाल का मुकम्मल इदराक था। मैं रिसीवर क्रैडल पर रख कर मुड़ा तो गजाला ने बेसाख्ता पूछा, क्या नरेश से बात हो रही थी? बहुत सही अंदाज़ा लगा लिया तुमने। मैंने हर से कहा, क्या मैंने उसका नाम लिया था? नाम भी लिया था, मगर मैंने आपके पास जवाब सुने हैं। क्या अब कोई नया मसला पैदा हो रहा है? मसला कोई नहीं है। वो मेरे डिप्रेशन की तरफ से फिक्रमंद था, साथ ही याद दिला रहा था कि पाकिस्तान लौटने के बाद मैं उसके साथ किए हुए वादों को फरामोश न करूं। मुझे बार बार की ये तकरार अच्छी नहीं लगती। इस पर जरा सी बहस हो गई थी। रावालों से आपके क्या वादे हुए हैं? उसने गौर से मेरी तरफ देखते हुए इतनी संजीदगी से पूछा कि लम्हा भर के लिए मैं बौखला गया। कोई वादे नहीं हुए, मैंने संभाला लेकर उसे जवाब दिया। ये मर्दाना बातें हैं, तुमको इन बखेड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद भी आपसे कुछ नहीं पूछती। इस वक्त आपकी एक तरफा बातें सुनी हैं तो दिल में तजस्सुस जाग उठा। राह का किस्सा शुरू से चल रहा है, लेकिन मैंने इस बारे में आपसे कोई सवाल नहीं किया। यह भारत की बातें हैं, इन्हें तुम यहीं भूल जाओगी। पाकिस्तान लौटने के बाद तुमने किसी के भी सामने राह का नाम लिया तो ये समझ लेना कि मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी।
ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे सिर्फ अपनी और आपकी खुशियाँ अजीज हैं। इससे आगे आप क्या करते हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। नाश्ते के बाद हम दोनों देर तक बातें करते रहे। वो सारी गुफ्तगू राह वालों को सुनाने के लिए थी जो हमारे कमरे में माइक्रोफोन लगाकर कहीं छुपे बैठे थे। ये बात हम पहले ही तय कर चुके थे कि हमें होटल के कमरों में अपना कम से कम वक्त गुजारना था। इसलिए गजाला ने तजवीज़ पेश की कि हम बाजार का एक चक्कर लगा लें ताकि अगले दिन के लिए खरीदारी का बोझ हल्का हो सके, और मैं फौरी तौर पर रजामंद हो गया। दिल्ली में हम दोनों का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था जिसे दिखाने के लिए हमें ज्यादा तैयारी या खुशपोशी के किसी नफीस मुजाहरे की जरूरत होती। हम जरा सी देर में तैयार होकर होटल से निकल खड़े हुए। होटल से निकलने के बाद एक मरतबा फिर कनॉट प्लेस के इलाके ने हमारे कदम रोक लिए। शहर में सैर व तफरीह के मुतअद्दिद मराकज़ मौजूद थे जिनकी अपनी अपनी खूबियाँ थीं, मगर कनॉट प्लेस की बात ही और थी। वहाँ से बारहा गुजरने के बावजूद मैं इस पुरशकू इलाके में हर मरतबा एक नई कशिश महसूस करता था जो दूसरे इलाकों में मफकूद थी। खरीदारी का जिक्र एक बहाना था, वरना हमें इस रोज़ भी बाहर कोई काम नहीं था। हम काफ़ी देर तक कनॉट प्लेस की दायरा दर दायरा इमारतों की ऊंची ऊंची राहदारियों, पुरशौकत बरामदों और शानदार दुकानों में घूमते रहे। इस दौरान में गजाला थोड़ी बहुत खरीदारी भी करती रही। मैंने इस बात पर कड़ी निगाह रखी थी कि वो कोई भारी चीज़ न खरीद पाए। ज़्यादा भारी साजो सामान हमारी वापसी की राह में रुकावट बन सकता था। कनॉट प्लेस से जामे मस्जिद एक समत में थी तो करोल बाग का इलाका दूसरी तरफ था। मैंने सोचा कि अगली रात हमें अपने बड़े शिकार के लिए इस तरफ जाना था। क्यों ना इसी वक्त वहां के एक चक्कर लगा लिया जाए। एक मुहूम सी उम्मीद थी कि मैं इस आबादी में अनिल बिस्वास का बड़ा घर पहचानने में कामयाब हो जाऊंगा जो सुनील एक बार मुझे दिखा चुका था। सुनील की फराहम की हुई इतला के मुताबिक नरेश शर्मा भी इसी इलाके में रहता था। इसका घर छोटा था जबकि अनिल बिस्वास को अपने बड़े ओहदे की बिना पर एक वसी कोठी मिली हुई थी। यहाँ दाखिल होना आसान नहीं था। हमें इसी तरफ चलना चाहिए। मेरी तजवीज़ सुनकर गजाला खुश हो गई। यहाँ हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हो सके तो हमें इन दोनों के घरों में घुसकर मवाक़े का जायजा भी ले लेना चाहिए। ऐसा कोई ख्याल दिल में ना लाना। अब वो हम दोनों को पहचानते हैं। हम इनके घरों में घुसे तो अपनी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकेंगे, फिर तो हमें इधर का रुख भी नहीं करना चाहिए। इन्होंने इत्तेफाक से हमें करोल बाग में घूमते हुए देख लिया तो इनके कान खड़े हो जाएंगे और हमारे कल के मिशन को आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। वो खदशा मेरे जहन में भी था। मैंने जवाब दिया, वो एक वसी रिहायशी इलाका है। हम इन दोनों में से किसी के घर नहीं पहुंच सकते। बस जरा इस इलाके से आजनाई हो जाएगी। शहर में लोग भांत भांत के उरियों में घूम रहे हैं। हम भी बड़े छज्जों वाले हैट और धूप के चश्मे खरीद लेते हैं। सरसरी नजर में इनका बाप भी हमें नहीं पहचान सकेगा। मैं आपके साथ हूँ, गजाला ने खुशदिली से कहा। इधर नहीं, ये कल वाला रास्ता है जो जामे मस्जिद की तरफ जाता है। आज हमें इस तरफ जाना है। मैंने उसका बाजू थाम कर उसका रुख घुमा दिया। कनॉट प्लेस से निकलकर हम अंदर ही अंदर पहाड़गंज के गुंजान और बारोनक इलाके में उतर गए। पहाड़गंज को दिल्ली में एक मुमताज़ हैसियत हासिल है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम शहर के इस हिस्से से इतना करीब रह रहे थे। मुझे याद था कि जब मैं आई बी वालों से अपनी पहली मुलाकात के लिए हज़रत बाकी बिल्ला के मज़ार पर गया था तो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन मेरे दाहिने हाथ पर पड़ा था। वहाँ से गुजरते हुए रिक्शा वाले ने हाथ के इशारे से बताया था कि सड़क के बाएं तरफ पहाड़गंज का इलाका था। पहाड़गंज में दिल्ली की कदीम और जदीद तहजीब के शाहकार यकजा नजर आते हैं। इमारतों से इंसानों तक में ये खुशगवार और इनफरादी तजाद नजर आता है। किसी गाइड की मदद के बगैर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है वहाँ खड़ी हुई इमारतें किस दौर की अक्कासी कर रही हैं। पहाड़गंज से निकलते ही हमें एक दुकान के नाम के नीचे अंग्रेजी में झंडे वाला नून लिखा हुआ नजर आया। वो शायद इस आबादी का नाम था। इससे आगे करोल बाग का जिंदगी से मामूर रहायशी इलाका वाक़ था। अपनी इस तवील पैदल मुहिम में हम झंडे वाला नून से सीधे बंदूक गुप्ता रोड पर जा निकले। हमारा मकसद करोल बाग की सड़कें नापना नहीं था। मैं इस इलाके का नाकदाना सर्वे करना चाह रहा था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से आगे निकलते ही मैं बाएं तरफ मुड़ गया। हमने बातें करते हुए और रास्ते में नजर आने वाले हर काबिल जिक्र मकाम में गहरी दिलचस्पी लेते हुए अपना वो सफ़र खरामा तय किया था। इसलिए हमें होटल से वहां पहुंचने में देर हो गई थी, वरना मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मुसाफर 2.5-3 किलोमीटर से ज्यादा नहीं थी। पैदल वहां तक पहुंचने के बाद अंदाजा हुआ था कि हमारे बदतरीन दुश्मन हमारे पड़ोसी में रह रहे थे। हमने रास्ते में बड़े हैट और धूप के सस्ते चश्मे खरीद लिए थे। दिल्ली की तपती हुई गर्मी में वो चीजें जरा भी अजनबी नहीं थी। बाजारों की हद तक हर बात ठीक थी। किसी ने हमें टोका ना कुछ कहा। लेकिन करोल बाग में घुसने के बाद ही मैंने महसूस किया कि मुतवस्सित तबके के मकानों के बाहर मौजूद लोग दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे और दबी आवाज़ों में आपस में बातें भी करते जा रहे थे। आप इन बातों पर ध्यान न दें, मेरी निशानदेही पर गजाला ने धीमी आवाज़ में कहा। यह बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के बासी अभी इस मुआशरती बेगानगी के शिकार नहीं हुए हैं।
जो कराची में आम नजर आती है। इन्हें तजस्सुस है कि इनके इलाके में कौन आया है और किस तक पहुंचना चाहता है। कराची में चोर और डाकू तक दंदनाते हुए आते हैं और अपना शिकार खेल कर लौट जाते हैं। जिस पर उन नागहानी उफ्तार टूटती है वही उसका खुमियाजा भुगतता है। दूसरे मासूम तमाशाई बने रहते हैं और कभी जुबानी हमदर्दी से आगे नहीं बढ़ते। इस वक्त किसी माशरती स्कॉलर की तरह तकरीर कर रही हो। तेज मुशाहिदा रखने वाला हर हिस्सास आदमी अपने माहौल का स्कॉलर होता है। वो खुशगवार मूड में कह रही थी। हमें अपने इलाके में देखकर इनके कानों पर जूं बिना रिंग थी और ये बेहिस बने बैठे रहते तो मुझे सदमा होता। मुझे यकीन है कि हम यहाँ से पूछगछ का सिलसिला शुरू करें तो थोड़ी देर में अपने दोनों हरीफों के दरवाजों तक पहुंच सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम यहाँ इस मकसद से नहीं आए। मैंने उसे घूर कर कहा। वो शौकी से हंस पड़ी। मेरा भी ये इरादा नहीं है। मैं एक मिसाल दे रही थी। किसी भी आबादी में नौवार्द अफराद का तजस्सुस और उनका मुतलाशी अंदाज मकामियों की नज़रों से पोशीदा नहीं रहता। हम तीसरी गली से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि एक मकान के बाहर चबूतरे पर बैठे हुए कई नो उम्र और अधेड़ उम्र अफराद की नज़रें हमारे ऊपर मरकूज हो चुकी थी। मैंने भी दूर से इनके तेवर भांप ली और अपनी रफ्तार कदर तेज कर दी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस टोली को यकसर नज़रअंदाज करके तेजी से आगे निकलता चला जाऊंगा। तुम भी इनकी तरफ न देखना। मैंने गजाला को खबरदार किया। यह भेड़ गले पड़ सकती है। नहीं देखूंगी, मगर मुझे इनकी नज़रों में हम दर्दाना तशवीश नजर आ रही है। बक बक मत करो। हमारे लिए सिर्फ 2 भारतीय हमदर्द काफ़ी हैं। इनके होते हुए हमें किसी और की ज़रूरत नहीं। मैंने धीमी आवाज़ में तलखी से कहा। हमने अपनी गर्दनें सीधी की और तेज तेज कदमों से इनके सामने से गुजरते चले गए। मैंने कनखियों से देख लिया था कि इनमें से कई हमसे मुखातिब होने के मुतमानी थे, मगर हमारी तवज्जो न पाकर इनके चेहरों पर मायूसी फैल गई। लेकिन इनमें से किसी के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो हमारे पीछे लपकता हुआ चंद लम्हों में हमारे साथ हो लिया। भैया, परदेसी लागत हो, किसका घर ढूंढे हो? उसने खेसे फैलाकर बहुत नरमी से पूछा। मैंने धूप के चश्मे के तारीक शीशों की ओर से उसे घूरा। वो एक सादा लू आदमी था। उसे उलझना बेसूद था। मैंने इत्मीनान से कहा, हम भगत सिंह का घर ढूंढ रहे हैं। उसके चेहरे पर नाचने वाली मुसर्रत देखकर मेरे फरिश्ते कूच कर गए। वो मुसर्रत भरी आवाज में कह रहा था, वो तो पीछे वाली गली में रहते हैं, रेलवाई में मुंशी का काम करते हैं। आओ मैं तुम्हें उनके दरवाजे तक छोड़ आता हूँ। इस वक्त घर पर उनके बाल बच्चे होंगे। वो अपनी ड्यूटी से शाम ढले वापस आते हैं। उसे एक ही सांस में मालूमात का दरिया बहा दिया था, जो मेरे लिए सूदमंद साबित हुआ। मैंने तहम्मुल और संजीदगी से कहा, हमारे भगत सिंह तेल का कारोबार करते हैं। इनका रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो यहाँ अकेले रहते हैं। वो बेचारा सोच में पड़ गया। मैंने जवाबी वार में उसे चित कर दिया था। चंद सानियों तक अपना सर खुजाने के बाद उसने पूछा, इनके मकान का नंबर क्या है? नंबर नहीं मालूम, मगर घर मेरा देखा हुआ है। तुम आराम करो, हम थोड़ी देर तक भटकने के बाद उनका घर तलाश कर लेंगे। आगे जाकर तुम उल्टे हाथ पर मुड़ोगे तो वहां पीपल के नीचे शतरंज की बाजी चल रही होगी। वो लोग सब कुछ जानते हैं। तुम्हें दूसरे भगत सिंह के घर भेज देंगे। कोई भी बच्चा तुम्हें वहां पहुंचा देगा। इसे गुलू खुलासी की उम्मीद होते ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। उसे यकीन दिलाया कि मैं उसके मशवरे पर जरूर अमल करूंगा और तेजी से आगे बढ़ गया। गजाला इस सूरत हाल से खासी महजूज हुई थी। चंद कदम दूर निकल आने के बाद बोली, शतरंज बाजों के घेरे में फंस गए तो वो आपको भगत सिंह नामी किसी तेल फरोज तक पहुंचाए बगैर हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। हो लिया यहाँ का जायजा। मेरी माने तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। जबरदस्ती हमदर्दियां लूटने वाले लोग कभी कभी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। आसार यही बता रहे हैं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने उसकी राय से इत्तिफाक करते हुए कहा।